Hello guys, welcome back to the channel. This is Pratik and you're watching Sports Question, where we just don't talk about sports on the surface but in depth. तो आज हम बात करेंगे about Premier League. It has come back guys. Finally football season is starting again. और I should have done a preview of the first game week but unfortunately नहीं मैं नहीं कर पाया. And club football and this season is gonna be absolute lit season because I think we will be seeing excellent football, like historical football will be played this particular season because it's a World Cup year. और जब World Cup year होता है, we all know everyone gives their all, gives their best. And considering कि पिछला season कैसे गया, lot of teams which didn't win much won trophies again and again. And it was such a historical season last year itself. And I believe this year as well, it can be a historical season yet again. And so, with that, let's not waste our time and get on to it. प्रीमियर लीग एक ऐसी लीग जो टॉप लीग्स के टॉप पे रहती है. ऑलमोस्ट एवरी वन इन द वर्ल्ड इज engrossed in it one way or another. There are different leagues पर प्रीमियर लीग का दबदबा अभी तक है because there is contest and every and any team can beat anyone. There is not a lightweight or heavyweight in this. There is obviously, but clear winner कोई भी नहीं हो सकता. कुछ भी हो सकता है. And sports में वही बात है. We expect an underdog to win. And जो last game week था, game week 1, उसमें भी there were good chances of from some teams like Manchester United played really well. And Arsenal were, I won't say lucky, but Arsenal were looking really lackluster, and then then they thought that ये हो रहा है. Havertz got injured. They brought in Eze. Tottenham का क्या चलेगा पता. They got hijacked. And Newcastle obviously उनका problem चालू है. They couldn't score a goal, and unfortunately 0-0 draw against Aston Villa, which were playing with 10 men. Obviously the red card and all हुआ. And yeah, they might going forward they might be lacking really that sharpness in their forward line because Isak बहुत ही important player है उनके लिए और वो भी समझ नहीं रहे that they have to let him go. They can't stall him, they can't stop him क्योंकि at the end of the day उसको रोक के क्या ही फ़ायदा मिलेगा उनको. अगर वो रुका तो अगले साल तो उसका ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म ही होने वाला है. कुछ तो ऐसा ही है मे बी. तो उसको रोकना इट्स लाइक जस्ट एडिंग सफरिंग टू योर सेल्फ क्योंकि उसको रोका तो फिर उसके पे वेजेस भी भरने पड़ेंगे. ही वोंट प्ले फॉर यू. कुछ खेलेगा वेलेगा नहीं बट वेज भरना ही है. एंड ऐसे ही चालू है. एंड द प्लेयर वो इज़ कमिंग इन बीस बीसा वो भी ब्रेंटफोर्ड में स्ट्राइक करके बैठा है दैट आई वांट टू गो टू मुझे न्यूकासल पे जाना है और न्यूकासल वाले इसे को जाने नहीं दे रहे. तो यही चालू है सबका इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर हेरा फेरी. और इधर से उधर करते 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 गेम वीक 1 वैसे ही ख़त्म हो गया. अभी गेम वीक 2 के बारे में बात करते हैं. सो द फिक्सचर्स आर ऑब्वियसली कल ये वीडियो जब कल आएगी तो कल रात को चेल्सी वर्सेस वेस्ट हैम है. आई थिंक वेस्ट हैम डिड डिसेंटली. ये भी वो नहीं बोल सकते यार बिकॉज सनडरलैंड वो. okay, so a bit about me before we get into it. I am supporting Sunderland this season. मुझे पता है कि तुम लोग क्या बोलोगे क्योंकि ये तो सबसे ब्रेंडेड ये है. बट मुझे क्या लगता है कि आई हैव अ थिंकिंग दैट लेट्स चेंज टीम ईच एंड एवरी ईयर. नॉट बिकॉज आई वांट टू हैव लाइक मुझे एक ही टीम को सपोर्ट करना है ऐसा ये नहीं. आई हैव सम टीम्स विच आई एम क्लोज टू विथ माई हार्ट
but at the same time I want to support some smaller teams which are not as well known, और उनका इतना हम नाम नहीं कर लेते, बिकॉज वो मज़ा आता है यार, मतलब व्हेन यू वॉच द स्मॉल टीम्स, कोई भी अच्छे ऐसे ज़्यादा हाइप्ड अप टीम्स नहीं तो बड़े प्लेयर्स जिनके पास नहीं होते, those teams actually play with a lot of heart, with a lot of passion, और उनके फैंस भी इतने पैशनेट रहते हैं ना, जस्ट लव इट। और मुझे ऐसा लगता है कि सनडरलैंड इस साल दे विल सर्वाइव, समवन लाइक वुल्स और वेस्ट हैम कैन गो डाउन एंड इट वुड बी, मतलब पता नहीं यार, एवर्टन तो जाएगी नहीं, वी ऑल नो। एवर्टन हमेशा ऐसे ही करती है कि हाँ मैं जाऊँगा जाऊँगा जाऊँगा, नहीं 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 नहीं, जाऊँगा जाऊँगा जाऊँगा, नहीं 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 नहीं। हाँ यार, सारा मजाक तो चलता ही है उसमें। बट उसकी वजह से उनके प्लेयर्स भी नहीं ले पाते ना, ब्रैथवेट, छोड़ो। बट वेस्ट हैम पक्का हारेगी, अभी वो कितने से हारेगी वो मुझे नहीं पता, बट वो हारेगी। मे बी चेल्सी, इफ दे आर शार्प, क्योंकि फर्स्ट गेम में दे लुक्ड गुड बट क्लिनिकल नहीं थे, गोल नहीं मार पाए, ड्रॉ, 0-0 ड्रॉ। मैंने वो मैच देखी नहीं, हॉनेस्टली बता रहा हूँ। और या उस वजह से सब कुछ ऐसे हो गया कि यार मैच में दे आर प्लेइंग विद गुड इंटेंसिटी, बट एट द सेम टाइम वो गोल ही नहीं स्कोर कर पा रहे। And I think so that would be the template for most of the season for Chelsea, because उनके it is a side that I don't think is quite convincing, but it is convincing. It's like यार उनको सेल्फ बिलीव होना चाहिए, एंड दे नीड टू बी क्लिनिकल। दे आर क्लब वर्ल्ड कप चैम्पियंस, so basically they are world champions in a way, but पर उस बात से अगर हम सोचे तो दे शुड बी एटलीस्ट competing, एंड आई थिंक सो मोस्ट ऑफ ऑल सारे टीम्स ऐसे ही खेले गेम वीक 1 में, एक्सेप्ट फॉर सिटी एंड लिवरपूल। एंड सिटी लुक्स रियली डेंजरस, उनके बारे में बात करेंगे। उनका भी गेम है विथ टॉटनहैम, एंड इट्स गोना बी क्रैकर ऑफ अ गेम, क्योंकि Tottenham still looks like a great team at the same time. Both teams scored really good, मतलब बहुत ही अच्छे स्कोर लाइन से जीते थे, बिकॉज सिटी 4-0 से जीती थी एंड टॉटनहैम जीती थी अराउंड 3-1, 3-0, 3-0 से ही जीते आई गेस। 3-0 या 3-1, 3-0 ही था, 3-0 ही था आई गेस। एक मिनट, 3-0 ऑब्वियसली। बर्नली 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 भी नीचे ही जाएगी मोस्ट पॉसिबली। बट ये एक बात है कि since past few seasons, whenever City have won, I think they have lost to Tottenham most of the times in this league winning season. So if they lose in this match as well, they won't be that much scarred. But again, Chelsea की बात कर रहे हैं तो टाइटन कंटेंडर्स हो सकते हैं, पक्का हो सकते हैं, बट सिर्फ वो मेंटालिटी एंड वो क्लिनिकलनेस होनी चाहिए, बिकॉज every draw, every single point lost is a gain for लिवरपूल एंड सिटी, ये दो तो पक्का रहेंगे। आर्सेनल भी हो सकती है विद द साइनिंग्स एंड ऑल, बट उनके बारे में बात करेंगे। बट गैगोरेस वाज एबिसमल, मतलब उस यूनाइटेड ने बहुत ही डिफेंसिवली बहुत अच्छा गेम खेला था, बट उनके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे। चेल्सी वेस्ट हैम का अब देखें तो it could either go to 1-0 for Chelsea, or a, thrum- a thumping victory for them, around 4-0, some 4-1 maybe. I don't think West Ham जीत पाएगी ये match, so I don't that is my prediction for this match, which will be tomorrow. Do check it out.
and it will be on TV. I won't say the name of the channels and all, क्योंकि भाई स्पॉन्सरशिप तो मिल नहीं रही है, इधर लोग भी नहीं देख रहे. बट या देन वी हैव सिटी एंड टॉटनहम. इसके बारे में अभी हमने बहुत बात कर ली. रिचार्लिसन स्कोर्ड 2 great goals. He scored a brace and currently is on top of goal scoring chart because एक ही मैच हुआ obviously, but yeah still. And पता नहीं वर्ल्ड कप के टाइम रिचार्लिसन में कौन सी माता आ जाती है कि वो बंदा अच्छा खेल लेता है. बट या अगर वो अच्छा ऐसे ही खेलता रहा देन ब्राज़ील नो who their striker would be along with the goat एंटनी. यार वो है किधर, मुझे ये भी नहीं याद है. वो यूनाइटेड में ही है कि किधर लोन पे चला गया. आई डोंट थिंक सो ही हैज़ वेंट ऑन एनी लोन एज सच. बेटिस में है क्या वो चेक करना पड़ेगा अभी. बट आई थिंक सो इट वुड बी a 1-1 draw. I'm going safe for Tottenham and City. See, दो रिजल्ट हो सकते हैं. Either it would be 1-1 draw or either of the teams could win 1-0. Yeah, I know it sounds so bad, but yeah, that can happen. We know what these teams are capable of. And plus, it's just game week 2, so I don't think so इतना भी ज़्यादा clinical दोनों भी teams है. Like the opponent in the first game was, according to the standards, pretty easy. And थॉमस फ्रैंक ऐसा भी बंदा नहीं लगता जो एक ऐसा अटैकिंग फ्रंट पे पूरा काउंटर अटैकिंग फ्रंट पे चला जाए like Ange Postecoglou was. So I think it would be somewhere around there, 1-1 or 1-0 for either of the teams. Then comes Bournemouth and Wolves. Bournemouth played really well, I would say, competing against last year's champion till the end, till the 80th minute was so amazing, and they obviously is a good team. And a note to a note this I'm neither protesting and neither doing anything like that, but racism should not exist anywhere in this world. There are people who think otherwise. There are people who think that no, this is not. They want to spread that. And एक बात बोलना चाहूँगा बस, जो हेट होता है ना वो बहुत ही इजीली स्प्रेड हो जाता है, पर जो लव होता है, जो एकता रहती है, ऐसा कुछ अच्छे इमोशंस रहते हैं, it is really tough to spread that. And I think we should always be grateful for things. We should always be loving to others, respectful to others, and we should always keep working hard and not hurt someone's feelings. And unfortunately, in the Liverpool game, that happened. And yeah, it was a sad incident, and I feel like it was just iconic irony that Semi Semenyo was the one who scored the brace and scored those goals to equalize. It was such a heartwarming. It felt like everything was coming into peace, and no one was sad, to be honest. If even if Bournemouth lost, they were also happy that the one who scored was there. The one guy who was racially abused and a lot of things, and this needs to stop. I mean, a lot of this we see these countless steps. Let it be Madrid or Vinicius Junior or some other person, but it is still continuing, and it is ruining, in a way, ruining the sport as well as harmony. But again, is this is actually the first incident I have heard happening in Anfield. I'm not a Liverpool fan, obviously, but yeah, Liverpool did play well and they eventually scored. And Chiesa, who was out in and out, and there were rumors, ये rumor था कि वो चला जाएगा.
बट वो नहीं गया एंड आई थिंक सो ही वो इधर ही स्टे करेगा अभी. ही जस्ट उसको सिर्फ फिट रहना चाहिए. फिर वो पक्का बहुत ही क्लासी प्लेयर है. हमने ये पहले भी देखा है यूरोस. जब मैं जुवेंटस को फॉलो करता था आई न्यू कि केज़ा एक ऐसा बंदा है जो किसी भी टीम में फिट होगा ना तो वो टीम को 10x नहीं करेगा बट एटलीस्ट 2x 3x तो कर ही देगा. 3x 2x विल इंक्रीज विल एड क्वालिटी. और उसने जो स्कोर किया है एंड मोहम्मद साला दिस गाय यू जस्ट कैन दिस गाय इज इनएविटेबल. इसको रोक ही नहीं सकते. इसको कोई भी नहीं रोक सकता. क्या आदमी है यार. एंड ऑलवेज स्कोर्स अगेंस्ट यूनाइटेड. आई एम अ काइंड ऑफ सपोर्टर फॉर यूनाइटेड सो या वो भी एक बात है. सो या आई थिंक सो Bournemouth was and for Wolves it was a trashing and I think so Wolves will be going down this season. My top three picks for the relegation would be Wolves, Burnley, and it would be a toss up between West Ham and Leeds. But I think so Leeds might just edge it. The thing is, Sunderland and Leeds have won their both of them have won the matches and Burnley were trashed. So वही बात है वही वापस वही बात आ रही है कि एक टीम तो फिक्स्ड है. बर्नली डिडंट इम्प्रूव. दे केम बैक इनटू द टॉप डिवीजन बट उनमें कोई भी ऐसा इम्प्रूवमेंट ऐसा दिख नहीं रहा है. आई नो एक ही मैच हुआ है बट स्टिल आई थिंक सो लीड्स और सदरलैंड हैव अ बेटर चांस ऑफ स्टेइंग इन द प्रीमियर लीग एज कम्पेयर टू बर्नली. और वुल्स भी शायद जाएगी डाउन. और बॉर्नमouth जैसा खेली थी आई बिलीव अ 2-0 विन फॉर बॉर्नमouth. एंड आई विश कि जो इंसिडेंट हुआ था उसको एफए फेडरेशन फेडरेशन करे कंसिडर एंड टेक एक्शन अगेंस्ट द लिवरपूल सपोर्टर एंड ऑल. सो ऑन टू द नेक्स्ट मैच ब्रेंटफोर्ड वर्सेस एस्टन विला. अभी एस्टन विला को एक रेड कार्ड मिला है दैट दे आई थिंक सो दे हैव कंटेस्टेड इट. और मे बी ओवरटर्न भी हो जाए क्या पता. बट certainly they would be missing him. And Brentford यार उनका ना मतलब पता नहीं क्या हुआ. They lost to Nottingham 3-1. Nottingham were too good obviously. But यार Brentford को अभी टाइम लगेगा to be honest I think. And also their coach has been changed right. Like Thomas Frank चला गया plus उनका बेस्ट प्लेयर भी उनके बेस्ट प्लेयर्स ऑब्वियसली वो लोग भी उतने वो भी छोड़ के ही चले गए थे अब ये क्लब. प्लस Buemo has gone. Buemo has left. Then Bisa is also leaving. So this is all a new team. But and also I think Brentford would also be a team जो शायद relegation के close जा सकती है. I don't think they'll be relegated. वो relegate नहीं होंगे. At least not this season. Maybe अगर उन्होंने ज़्यादा अच्छा ऐसा अपना स्टेबल नहीं किया बिकॉज देखो उनके पास पहले आइवेंटो नहीं था उसको जाने दिया ठीक है. ब्यूमो आया उसके बाद उसके साथ विसा था. ये सब थे उधर बट एट द सेम टाइम अभी अगर मैं ब्रेंटफोर्ड की टीम देखूं सो इट लुक्स क्वाइट शेकी एंड इट लुक्स क्वाइट weak as compared to that duo and the way they played last season because with tactical भी changes हो गए obviously because Thomas Frank I feel is the manager who kept Brentford into the game and his tactical aspect will help Tottenham for sure and they can make a run in Champions League as well and also in Premier League but I don't think so वो top 4 ही finish करेंगे. They won't go for the title. उनके पास वो आर्सेनल भी नहीं है. you saw what I did there. As well as उनके पास वो डेप्थ तो है ही नहीं.
They do have players, but I don't think so they would be as effective in the longer run क्योंकि injuries भी होंगी. There is a lot of football to be played. और players would play really safe this season at least till the World Cup. हाँ, और उसके बाद I think so it would again एस्टन विला. एस्टन विला का कुछ बोल नहीं सकते क्या करेगी क्या नहीं करेगी बिकॉज एट द सेम टाइम एस्टन विला बहुत मतलब ऐसे वो भी अनप्रिडिक्टेबल है बट they have Unai Emery. He will take care of it, and I think so they will win. I believe maybe a 3-0 or 2-1 win for Aston Villa, and Brentford would be losing again. So that is my score line. Then Arsenal versus Leeds United. Arsenal were lucky in the first match against Manchester United, and they are playing two Uniteds on trot. Well, Manchester United looked more settled as a team in the first half, and Arsenal, on the contrary, didn't look that settled. Mm, Saka was not look. Saka had his chances, but he wasn't able to make them to his full potential like he usually does. He was kept quiet. Guy Corres. This guy needs to be studied. Not in a good. Currently not in a good way. एक ही मैच हुआ पता है जो आई एम नॉट बीइंग टू क्रिटिकल बट मैं उसकी इस परफॉर्मेंस से बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम थिंकिंग अबाउट ओवरऑल थिंग्स बिकॉज द वन striker Luis Suarez, not the one who bites, but the other one, he scored a brace as well for Sporting. So if I compare that, I'm not saying you golden boot ही जीत जाएगा, he'll be best in the world like so what Kai Koros did वैसा कर देगा नहीं. But we need to think about it कि Victor Gyökeres had a career prior to playing for Sporting, and he played in England and he wasn't successful here. Plus, the Arsenal usually plays through their wings and corners, and they are a corner FC. Not being bad, we're just bantering, okay? क्योंकि उनका एक गोल आया वो भी कॉर्नर से आया. So let's it's a it's a banter FC. वो वो बीच में हैंड आया ना इसलिए मैंने वो ज़रा कर दिया. It's a Banter FC, or I don't know what to think about for them, but they were really poor. I don't think so. Leeds would be much of a threat to them, but at the same time, अगर हम पहली मैच की बात करें against Everton, they were rock solid. So I don't think Arsenal drop करेगी points. बट अगर उन्होंने ड्रॉप किया इट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग एंड सो फनी. मज़ा आएगा वेंटर करने को बहुत मज़ा आएगा. सो जस्ट फॉर द फन ऑफ इट लीड्स विल विन 2-1. Just kidding. Arsenal will win, but I think so it would still be 2-1 or maybe 2-0, either of it. So let's go ahead and let's see. The next fixture is Crystal Palace versus Nottingham Forest. Chris Wood. Where there is a forest, wood always strikes. Yeah, wood always keeps the forest to grow. And here the thing is same. Crystal Palace is Nottingham Forest, and I think so. Crystal Palace played really well. First of all, to hold on Chelsea, and Chelsea. I didn't know about the match, so I can't comment much on it. बट मैंने ऐसा सुना कि चेल्सी ने बहुत चांसेस ऐसे मिस किया और उतना कुछ बनाया भी नहीं. एंड क्रिस्टल पैलेस वाज गुड. दे प्लेड डिफेंसिवली वेल. दे आर लुकिंग सॉलिड. उनका मेन प्लेयर ऐसे चला गया है एंड दैट इज़ अ बिग ब्लो फॉर देम. बट एट द सेम टाइम आई थिंक दे हैव दैट कैपेबिलिटी टू hold on to things and they can make a result out of it, and I think they can take it out and have a result. और ये
आई थिंक सो ये मैच एक तो 2-2 ड्रॉ हो सकता है, नहीं तो ईदर ऑफ द टीम कैन विन 2-1, यही है। बिकॉज गोल्स आएंगे, ये मैच में पक्का गोल्स आएंगे। इट वुड इधर बी अ ड्रॉ और इधर बी अ 2-1 विक्ट्री फॉर बोथ ऑफ द टीम्स, बिकॉज बहुत कांटे की टीम्स है। मे बी बिकॉज ऑफ द because SA has gone, it looks up, it tilts a bit for Nottingham Forest, and I think so. Nottingham Forest के लिए it would be better, and I think so they can get a result out of it. So 2-2, either it will be 2-2 or 2-1 for either of the teams. But Nottingham Forest is my pick for this game, 2-1. Then Everton versus Brighton. Brighton जीत गई थी, but they still looked a bit shaky. And it is new season jitters, I think. But this Brighton team is settled again. उसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुए हैं और हमेशा की तरह कोई ना कोई नया आता है, एंड दे जस्ट ब्रिंग अ न्यू कार्ड टू पुट इन फॉर चेल्सी टू बाय क्योंकि उनके बेस्ट बायर्स चेल्सी है। उनके खुद के टेक्निकल डायरेक्टर बोल रहे हैं यार वो, बट चेल्सी को समझ ही नहीं आता। बट अगेन वो बहुत ही अच्छे प्लेयर्स देते हैं, सो नो कंप्लेंट्स। चेल्सी डू, और चेल्सी का बिजनेस है यार, चेल्सी कैसे बिजनेस करती है हम सबको पता है, और वो बहुत अच्छे बिजनेस करती है। सो हाँ, ये भी है। फिर आते हैं, इट वुड बी अ ब्राइटन विन ऑब्वियसली, क्योंकि एवरटन आई डोंट ट्रस्ट देम। और शॉन डाइश है ना, शॉन डाइश है तो फिर आई डोंट इवन ट्रस्ट देम टू गेट अ रिजल्ट। 3-0 ब्राइटन, 3-0। Then Manchester United versus Fulham. Now I'm a Manchester United fan, and although they were on the losing side, they played their best football since maybe 2 to 3 seasons. और ये एग्जैजरेशन नहीं है, ये सच बात है, क्योंकि 2 से 3 सीजन इतने ख़राब खेले हैं ये लोग, इतने ख़राब खेले हैं, रिजल्ट मिले, लाइक दे हैव वन। उन्होंने ट्रॉफी जीते, 2 ट्रॉफीज जीते थे एरिक टेन हैग के टेन्योर में, जो बहुत सालों बाद आए थे वो भी। बट एक एक के बाद एक आए थे, तो इट वाज गुड। बट और पिछले साल भी फाइनल तक पहुंचे थे यूरोपा के, जीतना चाहिए था, अच्छा खेल रहे थे, बट नहीं खेले फाइनल में। टॉटनहम जीत गई देर, और वो चैम्पियंस लीग में खेलेगी। हम 15 पे फिनिश किए, वो 16 पे फिनिश करके भी जीत पहुंच गई, 17 पे फिनिश करके भी पहुंच गई, 17, हाँ 17 पे फिनिश करके भी पहुंच गए। अभी क्या ही बोले, टफ लक की बहुत ख़राब खेले, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, बट वो पर्सपेक्टिव की बात है। बट तो जो इंजेक्ट किया है कुनिया भाई, बंदा क्या कमाल है, पानी है पानी, ऐसे जुप 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 करके जा रहा था वो, ड्रिबल कर रहा था आर्सेनल के डिफेंस को, विच इज नोन एज द बेस्ट कॉम्पैक्ट डिफेंस। बट फ्लावर्स नीड टू बी गिवन टू राया, उसने बहुत अच्छी गोलकीपिंग की, एंड दे गॉट द रिजल्ट, आर्सेनल को रिजल्ट मिल गया। बट आई थिंक सो ये मैच, दिस इज द मैच यूनाइटेड हैज़ टू विन। और 2013 में भी ऐसे हुआ था, फर्स्ट मैच हारे थे। सो डेलुलु यूनाइटेड फैंस, स्टे विथ मी, वी स्टिल गॉट अ लॉन्ग वे टू गो, बट डेल्यूजन मत छोड़ना, बिकॉज डेलुलु इज द ओनली सोलुलु। जेनजी की बातें कर रहा हूँ, आई एम नॉट अ जेनजी दो, मैं उनसे बड़ा हूँ। आई एम लुकिंग लाइक ओल्ड मैन, माई लाइक ओल्ड मैन ब्रदर्स sisters who might be watching it, I don't know. But yeah, United should win it. Fulham can come back to bite you, obviously। बहुत ऐसे मैचेस हुए हैं और पिछले साल के बाद तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता कि कौन जीतेगा, क्या हो सकता है। पर आई बिलीव एंड ट्रस्ट यूनाइटेड, एंड आई बिलीव इट वुड बी अ 3-1 विन। पता है बहुत ऐसे गोल तो नहीं आएंगे भाई, ये एक गोल नहीं मार पाए
आर्सेनल के अगेंस्ट, तो कैसे मार पाओगे? एंड आई नो कि हर बार ऐसा ही होता है कि एक टीम के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेल लेते हैं और दूसरी टीम के अगेंस्ट टट टट टी। तो फिर उस हिसाब से तो ये गेम हारना चाहिए, बट आई एम स्टिल, दिल से ही लगता है यूनाइटेड के लिए कुछ तो फील होता है अच्छा। उन उनके लिए एक सॉफ्ट सॉफ्ट कॉर्नर है रोनाल्डो एंड रियल मैड्रिड, वो सब कनेक्शन की वजह से या। और सो मुझे लगता है कि यूनाइटेड जीत सकती है एंड यूनाइटेड हैव द चांस, 3-1 यूनाइटेड। एंड नाउ वी आर गोइंग टू द लास्ट गेम ऑफ दिस गेम वीक, दैट इज बिटवीन न्यूकासल एंड लिवरपूल। अभी न्यूकासल आर फाइटिंग टू कीप इसाक, आर ट्राइंग टू कन्विंस हिम, जो बातें चालू है ये वो चालू है। उस वो बोल रहा है कि हाय, न्यूकासल ने मुझे धोखा दिया। उधर उधर लिवरपूल वाले बोल रहे हैं हाय, तू क्यों नहीं आ रहा है। उधर न्यूकासल वाले बोल रहे हैं हाय, तुझे क्या करना पड़ेगा कि तू आ जाए, तू रुक जाए। भाई सबको अपना अपना चीज़ मिल रहा है। लिवरपूल उसको बेच बेच उसको खरीद रही है, इसाक को स्ट्राइकर मिल जाएगा। उधर न्यूकासल को 150 मिलियन कितने चाहिए उनको ही नहीं पता। वो तो 200 मिलियन दी, तीन, मुझे लग रहा है वो 300 भी मांग लेंगे। पागल हो गए वो लोग तो, अलग उनका अलग ही पागलपन चालू है। पर लिवरपूल वर्सेस न्यूकासल, जो जीता वो इसाक रखेगा। वही इसाक सच्ची में इतना महंगा जा रहा है, पता नहीं क्या करने वाले इतने पैसे का। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसाक पैसा पैसा इतना कर रहा है। नहीं सॉरी, इसाक नहीं कर रहा है एक्चुअली पैसा पैसा, न्यूकासल इतना पैसा पैसा कर रही है, ये सऊदी ना बेच दे इसको। बेच भी सकते हैं वैसे देखा जाए तो, उनके ओनरशिप का ही है मॉडल, तो बेचने के लिए तो बेच सकते हैं। पर पता नहीं यार, ऐसा लग रहा है कि वो नहीं बेचेंगे। अगर बेच दिया तो कमाल है, अगर नहीं बेचा तो बवाल है। फिर मे बी जो अपना मिड मिड में रहेगा 6 महीने बाद, ट्रांसफर मार्केट विंटर वाला, उसमें बेचना पड़े। बट यार उसमें ना ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें यही आता है कि उसमें तुम ना ज़्यादा खर्चा भी नहीं करते हो और ज़्यादा ऐसा लेते भी नहीं हो प्लेयर्स को, तो वही बात है। आई मीन अगर तुम सिटी हो तो अलग ही बात है, बट तब तब भी। एंड आई थिंक सो ये बहुत ही क्लोजली कंटेस्टेड मैच होगा, लिवरपूल जीत जाएगी। मे बी 4, सिमिलर टू 4-2 वैसे जीत सकते हैं, नहीं तो मुझे लग रहा है 3-2 जीत जाएंगे, नहीं तो 3-3 ऐसा कुछ तो लग रहा है। एक तो ड्रॉ होगा, नहीं तो जीत ही जाएंगे, बट आई थिंक सो जीत जाएंगे। 3-2 टू लिवरपूल, दे विल विन इट। और अगर हम बात करें तो थोड़ी सी ला लीगा की भी बात कर लेंगे। जा जाबी अलोंसो की टीम, रियल मैड्रिड, एंड दे प्लेड रियली वेल, आई थिंक सो। मतलब बहुत चांसेस बनाए नहीं, क्योंकि ऐसे डिफेंस लगाई थी जैसे कि पार्क द बस कर रहे हो, जैसे 2-1-0 की लीड उनके ओसुना के पास है, तो चांसेस तो बने नहीं। एंड आई थिंक सो जूड बेलिंगम होगा तो इट वुड बी अ रियली गुड, लाइक वो कॉम्पैक्ट रख लेगा, वो टीम को चला लेगा बेटर। ही इज़ द मेन गाय इन दिस tactical changes of tactical things of जाबी अलोंसो। एंड यार बुरा लगा, रॉड्रिगो को देख के बुरा लगा। आई मीन फ्रैंको को भी चांस मिल दिया एंड रॉड्रिगो बस बैठा था, तो यार बुरा तो लग रहा था, बट आई थिंक उसको चांसेस मिलेंगे। उसके लिए भी ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे अभी इसको चांस नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, उसको भी मिलेगा। इट्स अ वेरी लॉन्ग सीजन और बहुत गेम्स होने वाले हैं, और वर्ल्ड कप ईयर है यार, इसमें खेलना ही पड़ेगा, नहीं तो
स्क्वाड में नहीं मिलेगा, 4 साल बाद वर्ल्ड कप वापस आएगा, और तब तक यू वोंट बी इन दैट फॉर्म ऑफ योर लाइफ, या फिर कैसे भी हम बात कर सकते हैं। सो रियल मैड्रिड का नेक्स्ट मैच है ओवीडो के साथ मंडे को, एंड आई थिंक सो रियल जीत जाएगी ऑब्वियसली, एंड इट वुड बी अगेन, आई थिंक सो 1-0 रहेगा कि 3-1, आई थिंक सो 2-1, let's let's come in between 2-0, and they'll again get a clean sheet. कोर्टवा को उधर बिठा दो, लेटा दो, सुला दो, क्या करना है कर रहने दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता डिफेंस कॉम्पैक्ट है, डिफेंस जाने नहीं देगा, और लास्ट सीजन की जो गलतियाँ हुई थी वो होंगी नहीं, और कर देगी यूनाइटेड ये रियल मैड्रिड काम। सो 2 विन्स इन 2 गेम्स लग रहा है। अभी बात करते हैं इनके डायरेक्ट राइवल्स बार्सिलोना की, जिन्होंने बहुत ही कन्विंसिंगली मालोर्का को हरा दिया, एंड आई थिंक सो मालोर्का वो एक टीम है जो हमेशा से तंग करती है रियल को और बारसा को, बस, बट मोस्टली वो एक है और रेयो वेलेडोर एक है, यही दोनों है जो इन दोनों को बहुत तंग करती है। रियल को नहीं करती, बट बारसा को थोड़ा तंग करती है ये दो टीम्स में भी थोड़ी, तो कन्विंसिंगली जीत गए, उनको रेड कार्ड भी मिला था, ओसोना को भी रेड कार्ड मिला था, एंड या इट वाज फेयर रेड कार्ड्स, बट एट द सेम टाइम कंट्रोवर्सी तो हो ही रही थी उसकी भी। सो बार्सिलोना वॉन 3-0, कन्विंसिंग विन, एंड नेक्स्ट मैच इज अगेंस्ट लेवांटे, उसमें भी ये जीत ही जाएंगे, बहुत ही कन्विंसिंगली जीत सकते हैं, मे बी 3-0 भी जीत सकते हैं, 4-0, इट्स लाइक दैट, 3-0 4-0 ही जीतेंगे ये लोग पक्का, और आई बिलीव कि दे विल बी टॉप ऑफ द टेबल आफ्टर गेम वीक 2 एज वेल। और एथलेटिको की बात करें तो एथलेटिको अपना फर्स्ट मैच हार चुकी थी, एंड इट वाज अ वेरी शॉकिंग डिफीट, द फर्स्ट शॉकिंग डिफीट ऑफ दिस सीजन मे बी इन द टॉप लीग्स इन द स्पेनिश एंड द प्रीमियर लीग, बिकॉज बुंडेसलीगा में तो आई डोंट थिंक सो उतना कुछ हुआ है अभी तक। बायर लेवरकुसेन भी अपना मैच जीत गई थी, एरिक टेन हैग का अपना फर्स्ट मैच फॉर बायर लेवरकुसेन जीते हैं एज मैनेजर इन बुंडेसलीगा, which is nice to hear as well, मतलब आफ्टर हाउ ही ट्रीटेड रोनाल्डो, वो शाइनी हेड, मुझे बात नहीं करनी इस पर, just happy that Bayer Leverkusen जीते, because that is another team I like and I love to support, and Atletico Madrid हारी गई अपनी फर्स्ट मैच by 2-1 against Villarreal, and although I think so कि Alvarez scored and he's actually Espanyol, sorry, गलती से बोल दिया था वो, and I think so Atletico needs to do well, and the next match is against Elche, but after this I think जीत जाएंगे एटलेटिको का, बाउंस बैक तो करती है भाई एटलेटिको, एंड आई थिंक सो इट वुड बी लाइक 2-1, and आई थिंक सो दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो। स्पेसिफिकली हमने प्रीमियर लीग और स्पेनिश लीग कवर की, ऑलमोस्ट हर बड़ी टीम के बारे में बात की इन द प्रीमियर लीग, और स्पेनिश लीग में भी हमने ऑलमोस्ट जो बड़े टीम्स थे, इम्पोर्टेंट टीम्स हैं, उनके बारे में बात कर ली है आई थिंक, और मैं कल नहीं तो परसों तक एक प्रिडिक्शन वीडियो भी डाल दूंगा फॉर द होल सीजन, मुझे क्या लग रहा है, एंड आई वुड लव फॉर यू टू जॉइन इन द डिस्कशन, बात करो, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, और जस्ट अगर आप वीडियो देख रहे हो तो जस्ट लव दिस, शो सम लव टू इट, बिकॉज ये मेरा चैनल नहीं है, ये आपका भी उतना ही चैनल है, सो टेक केयर, सब्सक्राइब, शेयर, comment down below,
and I'll see you in the next episode of Talks with Pratik. एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, सो प्रीमियर लीग टॉक्स विद प्रतीक. चलो, सो टेक केयर, बाय, पीस. दिस इज योर बॉय प्रतीक. टेक केयर, बाय.